जी, आरिफ साहब, तो पिछली किस्में बातें हो रही थी आपके लंदन के क़याम की, आपके अकाउंटेंटिंग के करियर की। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि आपने कहा कि अकाउंटिंग जो है बहुत बार नोबल प्रोफ़ेशन समझी जाती है। और मुझे याद है कि मैं उस ज़माने में था पाक कुवैत में, तो हमारे एक दोस्त थे, जहाँ हमारा डेज़िग्नेशन था ना, उनका था अकाउंटेंट था, इंचार्ज थे। तो एक दफ़ा उनके कुछ इंक्वायरी आ गई, तो उन्हें सबको बड़ी खुशामद शामद की थी कि अब देखो ज़रा इज़्ज़त से काम लेना है, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं मेरी इंक्वायरी करने के लिए। तो खैर हम सब ने बड़ी इज़्ज़त से काम लिया, हर आदमी फ़ाइल लेके उसके पास गया, जिनका इंटरव्यू चल रहा था, सर-सर करता रहा और वो रिजेक्ट हो गए। जो लड़की के जो थे चाचा मामू जो भी, उन्हें बताया जाके कि ए मुंडा ते कोई कोई दी कंपनी च अकाउंटेंट लग्या जे। वो ज़माना हुआ था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस कंपनी की और कंपनीज़ आ रही थी। तो मुझे मालूम है कि अकाउंटेंट के ओहदे की वजह से हमारे एक दोस्त का रिश्ता होते-होते रह गया था कि मुंडा ते अकाउंटेंट लगे जी। तो चलिए हम आते हैं आपके बैंकिंग के करियर के ऊपर। जी, इंशाल्लाह जी, ज़रूर। तो आप पाकिस्तान में आए, पीपीएल आपने जॉइन की और उसके बाद आपके पास एक इंटरव्यू कॉल आती है जी हाँ। और आप इंटरव्यू देने पहुँच जाते हैं बिकॉज़ दे नीडेड अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू वर क्वालिफाइड फ्रॉम यूके। आगे चलिए कैसे हुआ फिर ये? Actually, this was a bank called Faisal Islamic Bank of Bahrain. जी, Arabic name Masraf Faisal Al Islami. जी, So they were looking to set up a banking operation in Pakistan. सही। They were based in Manama, Bahrain. But in Bahrain, they were not a commercial bank. They were an offshore banking unit, an OBU, अच्छा, at अच्छा, that अच्छा, अच्छा, time. अच्छा, अच्छा, At, अच्छा। at that time, and हाँ, OBU did not have हाँ, 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 वो customer बिल्कुल। counters, did not have saving account, current account, etc. They did wholesale, what is called as wholesale banking. जी, जी, जी। But they were in the process of getting a full-fledged commercial banking license for Pakistan, and they wanted to hire a core team that would set up the banking operations from scratch, from जी, zero. And so I was hired. They hired a very smart um, technology to head technology, a gentleman called Anwar Lutfullah. Uh, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सुना हुआ नाम है। जी, जी, हाँ। तो अनवर और मुझे इन्होंने बहरीन बुला लिया. We got selected, सही। and they said that we want you to come to Bahrain. We want you to work with our team to develop the policies, the manuals, the systems, and everything for Pakistan. हुँ, And that is what we did. We spent about a year in Bahrain. And in October 1987, Faisal Islamic Bank of Bahrain opened its doors in Karachi on II Chandigarh Road. सही। And that is when my banking career actually परहैप्स started. एट दैट टाइम फैसल इस्लामिक बैंक जो होल्डिंग कंपनी वो अलग, लेकिन जो फैसल बैंक कराची में खुला है दैट वाज़ अ कन्वेंशनल बैंक नॉट एन इस्लामिक। एम आई करेक्ट? No, it was purely Islamic bank. अच्छा, It was purely Islamic bank. सही। क्योंकि उस ज़माने में कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तो थी नहीं See, इस्लामिक बैंक को देखिए गवर्न ये करने के, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट शरिया एडवाइज़र और ये सब चीज़ें थी। देखिए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है ना, ये जो फ्रेमवर्क आया उसमें हम बाद में बात करेंगे, हुँ, बट आई विल डिस्कस दैट लेटर. बट there was no regulatory framework, but जी, there were two Islamic banks, one Islamic bank already operating in Pakistan, which was जी, Al Barka, जी, जी, and Faisal Islamic Bank of Bahrain came into Pakistan as an Islamic bank. I think this may समझ गया। not be commonly known. Okay, in fact, I find it interesting, even strange, that Faisal has gone full circle. जी, Faisal, जी, जी, Faisal हाँ, started its life हाँ, as an Islamic bank, जी, and then eventually, sometime in early 2000, जी, when the Islamic banking framework was introduced by the central bank, जी, at that time the management of Faisal Bank decided that they would not want to pursue Islamic banking. जी, 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 So they became a so-called कमर्शियल बैंक, कन्वेंशनल बैंक। conventional commercial bank, जी, जी, right? But their parent company, जी, which used to be Masraf Faisal Al Islami, later became Shamil and then Itmar, जी। uh, was always Islamic. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है Ji, ji, it was क्योंकि always Islamic. जी, But I never, and I don't want to comment on why or what happened or how it happened. I don't know.
as क्या to वैसे आई एम सॉरी ज़रा हम थोड़ा-सा इससे हट जाएँगे, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि जब 2000 में मैंने यू-टर्न ले लिया, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, तो मुमकिन हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रही होगी उसको भी मैंने अबैंडन किया होगा नॉर्म पे आगे में। क्या इसके अलावा वहाँ पे बीइंग सो कॉल्ड इस्लामिक सो कॉल्ड नहीं बल्कि बीइंग एन इस्लामिक बैंक, आप समझते हैं कि जैसे शरिया एडवाइज़र का कॉन्सेप्ट, हराम इनकम का कॉन्सेप्ट, ये सारे उस तरीके से वहाँ पे थे? of course, अच्छा, भाई अच्छा, Maulana Taqi Usmani Sahib was the chairman of the Sharia board of सही है। Faisal Bank Pakistan. जी, 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 जी। You see, जी, हमारा एक Sharia board था, it was an Islamic bank. जी, But my learning from Faisal, जी, which I believe we were able to, at least benefited me when I came to Mizan, मीज़ान बैंक या was that देखिए वो एक ज़माना था जो इस्लामिक बैंकिंग, there was no, it was not really an environment which was very conducive for जी, Islamic जी, जी। banking. You know, ये जो SLR होता है ना, you जा may be familiar with the term called statutory liquidity. जी, 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 Every bank needs to maintain a certain percentage जी, of deposit in government securities, जी, right? Now, at that time, sukuks did not exist. जी। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूँ Hmm. कि जो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद, अगर मैं कहूँ कि फैसल बैंक पैदा हुआ एज़ इस्लामिक बैंक, Yes. वक़्त आया Hmm. कि वो जो पैदाइशी इस्लामिक बैंक था, जी वो कन्वर्ट होके कमर्शियल बैंक हो गया और आजकल माशाल्लाह फिर रिवर्ट हो गया, वो दोबारा इस्लामिक बैंक हो गया है। जी हाँ, चलिए, एग्जैक्टली ठीक है। उस पे मैं बाद में उस पे हाँ, उस पे भी आपसे आऊंगा। बातें होंगी ज़रा। हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह जी, जो जी। आप and एसएलआर का I would like to believe जी, that one of the reasons why Faisal and a lot of other banks are looking at Islamic is there are two reasons. One is that हमारे मुल्क का जो apex court है, the Sharia bench of जी, the बिल्कुल, Supreme जो Court उसने टाइमलाइन जो दी हुई has है। given a timeline and a ruling, and the central bank is very serious on that ruling. तो एक तो ये वजह है, but the other reason I believe is commercial, because Mizan alhamdulillah showed to the banking industry that you could be a very profitable Islamic bank. In fact, Mizan became the most profitable bank in this कोई country, शक नहीं है, कोई right? शक नहीं है। जी हाँ। So I think a lot of banks, in my opinion, not correctly, okay, because I can discuss as to why I believe it's not correct, but they believe that Islamic banking is the only game in town, right? That Islamic banking हम convert हो जाएंगे तो then many other doors will open and we'll become Islamic. देखिए Islamic banking does have an advantage in this country because you and I are Muslims. At the end of the day, given a choice, the average Pakistani, and it has been demonstrated, will prefer an Islamic product, right? So the point is that there were two reasons why Faisal converted into an Islamic bank, right? But we'll come to that later. जी, जी, बिल्कुल। जी। तो मीज़ान बैंक, सॉरी फैसल बैंक में मैंने अपना करियर का आगाज किया. हुँ। I started it with we started with one branch in Chandigarh Road. Those were the days in which foreign banks were only allowed 3 branches. अच्छा, You could not open more than 3 branches. इसीलिए हमने सॉकजन जो एक्वायर किया है 2001 वगैरह में, क्योंकि 3 ब्रांचेस टोटल सब दिया है। साइड चैनल की जब एक्वायर किया था। सॉकजन की सिर्फ 3 थी. जी हाँ, सही है। Exactly. फैसल बैंक did well. Okay. मैं कोई 5 साल फैसल के साथ रहा. हुँ, But then in 1992, जी, post 1 year after the privatization of MCB, जी, I joined MCB to head investment banking at MCB. जी। Um, अगर मैं गलती पर नहीं तो आपने एमसीबी बैंक नहीं जॉइन किया था, आपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक जॉइन किया था। exactly. क्योंकि वो बाद में पता नहीं क्या वजह हुई कि उन्होंने उसका नाम बदला, हालाँकि 47 से था मुस्लिम कमर्शियल बैंक ये, और गलतन 2005 में आपके छोड़ने के बाद फिर उसका नाम बदल के एमसीबी बैंक रख दिया गया था। Correct. जी, बिल्कुल सही है. जी। I joined Muslim Commercial Bank, now हुँ, known as MCB. To start, they did not have investment banking as a separate जी, unit or department or profit center, if you like. So I joined. I initiated and I started a small investment banking unit. Allah ka shukar hai, we did very well, and that unit grew and it became very profitable. Um, um, but then there was a time, 4-5 साल गुजर गए, and जो MD थे हमारे फैसल बैंक के, नबील नसीफ, हुँ, he was a Saudi gentleman. Faisal, I think there were two key people at Faisal हुँ, who ran that organization.
One was Mr. Imtiaz Parvez, पाकिस्तानी जेंटलमैन जो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहे, एंड मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ. ही वाज एन अमेजिंग बैंकर. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. आई बिलीव दैट you are very lucky if you get to work with good bosses इसमें early in कोई your शक नहीं, career. Early in इसमें your कोई शक career, नहीं, it's just a question of luck. इसमें कोई शक नहीं, I was very वो lucky. मेंटोर होते हैं. जी हाँ, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. जी तो इम्तियाज साहब ने मैंने बहुत कुछ सीखा. तो ही वाज वन जेंटलमैन एंड द अदर वाज नबील नसीब, जी जो सऊदी थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे. इम्तियाज साहब वाज द जनरल मैनेजर जी इन बहरीन एंड नबील नसीब वाज द एमडी. जी तो नबील एंड इम्तियाज साहब ने मुझे अप्रोच किया जो भाई आप फैसल बैंक वापस आ जाएं. ओके, देयर वर वेरियस रीजंस फॉर इट. आई वाज नॉट जबकि दैट. आपको एमसीबी में जॉब करते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए थे, 3 साल, 4 साल जी 4 साल हो गए थे जी एज इन्वेस्टमेंट बैंकर. as the head of investment banking. जी I was the youngest SEVP at MCB. अच्छा. Yeah, I became the youngest SEVP in the history of MCB. I joined as an EVP, and then we did some historic transactions. And one of those transactions was the privatization of or sale of 20% of PTCL. And at that time, in 1994, MCB was the joint lead manager. Morgan Grenfell, जो एक UK based firm है, with Morgan Grenfell, we did that transaction, which raised $996 million, $1 billion for the government of Pakistan. It was the largest single transaction for the government of Pakistan. अच्छा 20% of PTCL was sold through an offering of what हाँ is हाँ called हाँ 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 GDRs, जी 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 Global बिल्कुल याद है, Depository याद है, Receipts, हाँ. right? Listed in the UK जी exchange. जी That transaction was handled by us. We made, Allah ka shukar hai, we made very good money on that transaction. It was a very successful transaction. So I worked with MCB, but I was, I felt that, there were some changes as well, and I was not that happy. And इत्तेफाक से ये अल्लाह के काम होते हैं. What happened is that I was not too happy at MCB, and at the same time, I got a call from Nabil जी and Imtiaz Saab जी that we want you to come back to Faisal. जी So I said, okay, ठीक है. So that's how I ended back in Faisal Bank. And then I was in Faisal for a few years. एक दिन मैं फैसल में था, so I received a call from Mr. Irfan Siddiqui. I had जी never met him before. I did not know who he was. He said a common friend referred your name to me, and I'd like to meet you. So I went to his office. He was general manager of Park Kuwait at that time in the FTC building. And long story short, he offered me the job of chief operating officer, which is effectively the number 2 position of Al Mizan Investment Bank. And I joined because this was actually, it's interesting. My joining date, I don't know आपको ये याद होगा या नहीं, was 1st April 1999. तो ये अंग्रेजी का वो है ना जो 1st April is April Fool's Day. नहीं वैसे भी जानना चाहता कि 1 अप्रैल किसके साथ होगी थी, आपके साथ होगी थी? मैं वही अक्सर कहता हूँ जो I don't know, whether the joke was on me or on Al Mizan. कम से कम अल मिजान के साथ तो हर किसी भी अल मिजान ने इतना फ्लोरिश किया है, तो वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अल मिजान के साथ 1 अप्रैल नहीं हुई अल्लाह थी. का शुक्र है. But my joining date was 1st of April 1999. जी And I joined, it was a small team at that time. जी बिल्कुल. We were in the borrowed office at Park Kuwait, जी in the FTC building. जी उन दिनों में आप भी उधर ही थे, आपसे मेरी जी हाँ. मुलाकात हुई. वो शुरू के दिन थे, and it was a very interesting time. आपको बड़ी मजे की बात बताऊं मैं कि जब वो परमिशन आई ना इरफान साहब पास बैंक बनाने की है, तो वो हिस्सा खाली पड़ा हुआ था. उन्होंने पहला काम ये किया कि फौरी तौर पर कारपेंटर बुला के हार्डवेयर जो हार्डबोर्ड की वहां पे पार्टीशनिंग करवाई, रंग करवाई, कुर्सियां लगवा दी. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ अल्मिजान इन्वेस्टमेंट बैंक की. Really? तो विद इन फ्यू 1 और 2 डेज, Right. तो उन्होंने सोचा ये होगा कि कब्जा सच्चा दावा झूठा. I think license, मुझे याद है आप लोगों को लाइसेंस मिला था 1997. जी 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 But जी then the nuclear test happened in जी 1998. वो बड़ा मसला हो गया था. तो उसकी वजह से चीज़ें कुछ थोड़ा सा डिरेल हो गई थी. derail हो गई, कुछ सिलसिला स्लो हो गया. So when I joined in early 1998,
I think the bank was in its very initial phase. जी And I consider myself to be privileged जी and very fortunate जी that I was part of that core team that had the opportunity जी to work right from the beginning, starting as a small investment bank. Allah ka shukar hai, alhamdulillah, we were very profitable जी 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 फ्रॉम डे वन from day one. फ्रॉम डे वन And so, uh, and Mizan, Al Mizan Investment Bank at that time had a very powerful vision. जी I believe, अगर हम एक मिनट को रोके मैं आपसे कोई बात पूछना चाहूंगा आपका देखिए करियर जो है कमर्शियल बैंकिंग का रहा है हमेशा ठीक जी, है राइट फ्रॉम पिटमार जो ऑडिट फर्म फिर फैसल बैंक वगैरह जो बीच का ब्रीफ पीरियड हम इसका निकाल दें आपने जब ये फैसला किया कि एक बहुत अच्छा कमर्शियल बैंक छोड़ने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन कर लूँ वो भी नंबर 2 पोजीशन के ऊपर जबकि आप एमसीबी में यंगेस्ट एससीवीपी थे और वो वक्त वो था अगर आपको याद होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर था वो एक पेंडुलम इम्पैक्ट की वजह से जो कभी बड़े टॉप पे था वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो रहा था जी, ठीक है exactly. क्यों इसलिए कि उसमें माल तो बहुत था इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो जैसे आपने एमसीबी बैंक का बताया जैसे बाकी बैंक थे एचबीएल वगैरह उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन अलग से बना लिए थे ठीक है जो बड़े बड़े नाम थे उस दौर के वो एक एक करके आपको मसाइल सामने नजर आने शुरू हो गए थे ठीक है चाहे वो ऑरेक्स रहा हो जो पहले प्राइम बैंक था बाद में जी, कर्मा जी, का सारा ठीक exactly. है ये कृष्ण नेशनल बैंक आपको मालूम है कि एक साल बड़ी धूम मच गई 1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ अगले साल में वैनिश हो गया हम्म, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक तो वो हमारे जो करते थे ये लोग मर्जर डीमर्जर एमएलगमेशन उसमें फीस बनती थी और दूसरा जो फंडिंग करते थे इनके पास पैसा तो कोई था नहीं That's the key. ठीक है ये तो कीमे की वो मशीन थे जिसके ऊपर हमेशा गोश्त चाहिए कमर्शियल बैंक को एडवांटेज है कि अच्छे पैसे इनके पास जो है डिपॉजिट्स के भी होते हैं बारी Exactly, करनी पड़ती है exactly. आपका ये 1 अप्रैल को ज्वाइन करना मीज़ान बैंक को एक इन्वेस्टमेंट बैंक को जो आपको यकीनन अंदाजा होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे आज अब पलट के देखते हैं अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस मिल गया अगर कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस ना मिला होता खुदा न खास्ता कोई गारंटी नहीं थी है तो आज इस मुल्क में एक भी इन्वेस्टमेंट बैंक बाकी नहीं है नहीं चलें ये एक अहम सवाल है एंड आई लेट मी ट्राई एंड रिस्पॉन्ड. देखिए, देयर टू थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू से हियर. पहली बात तो ये जो ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही राइट? है आई डोंट नो what is going to happen when I leave the next minute or the next hour, right? ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आपने अपने उसको बताया ना जो यूके में जो आपका मैनेजर था Yes, उसने आपको बड़ा क्लियर कट बताया था आपका करियर पाथ yes, कि मैनेजर दी एंड पार्टनर yes, तुम सारी उम्र कभी नहीं बनोगे correct. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी अपना पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंक नहीं बनेगा आपको याद होगा जमाने में क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जमाना था तो उससे पहले तो टिका के लाइसेंस मिल गए थे लोगों को बैंकिंग के ये लिए मिले थे यार. और स्टेट बैंक को बड़ी चोट पड़ी हुई थी तो स्टेट बैंक ने डिसाइड कर लिया था कि नो मोर कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस इन दिस कंट्री आप पहला कोई कमर्शियल बैंक का लाइसेंस ले आइए तो उसे आपको अलाउ कर देंगे लेकिन कोई नया कमर्शियल बैंक नहीं आएगा दैट वाज रिटन ऑन द वॉल ठीक Correct, है correct. और एक अनऑफिशियल मॉनिटरिंग लगा दिया था स्टेट बैंक ने और स्टेट बैंक की एक पॉलिसी थी कि न तो कोई सुपर मेगा बैंक आएगा इस मुल्क के अंदर कि मान लो सबको खा जाए और ना ही स्मॉल बैंक आएंगे छोटे छोटे उनका भाई तुम हो जा मर्जी है उसमें आपका डिसीजन बहुत ही बोल्ड था मीज़ान बैंक मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन करने का क्योंकि उस वक्त का कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक का बाकी नहीं बचा है नहीं सही कह रहे हैं आप. एंड आई कैन टेल यू दैट इट वाज अ रिस्की डिसीजन. रिस्क डिसीजन और बट इन्वेस्टमेंट बैंकर तो होते ही रिस्क लेने के लिए नहीं देखें, आई डोंट नो, मैं बिकॉज देखिए मेरा नेचर जो है ना वो थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज बीइंग पॉम्पस और एरोगेंट, बट आई हैव, अल्लाह का शुक्र है, बचपन से ना आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप कोई काम नेक जी नियति जी से जी 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 नेक नियति से और मेहनत से, इफ यू वर्क हार्ड जी एंड यू आर ट्रू टू योर कॉज, जी बिल्कुल right, then Allah Mia जो है ना, Allah subhanahu wa ta'ala opens doors for you. So I had a very strong feeling. देखिए, I felt that I have certain advantages जी over my colleagues, other colleagues. उसकी जी वजह ये है जो I had a very solid commercial banking background. I had a very deep understanding of the grassroots functioning बिल्कुल of इसमें कोई शक banks नहीं है because of my auditing career. जी And
I felt that this was a opportunity, or I felt very excited. By जी nature, जी I like to take on challenges. Okay, I took on a challenge at Faisal as well, because we started Faisal from scratch, and Faisal at one time was a very successful bank, जी 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 right? Somewhere along the way, I think that the things went a little off track. I don't want to comment on that, but Faisal was a very successful bank, and we built it from zero. हम्म I, I, it gives me a lot of pleasure, yeah, I would say, satisfaction, हम्म um, in building something, जी in doing something which is bigger than yourself. You know, I never looked at a job that, यार वो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, and salary was never my consideration, right? It was always that how can you, what can you do, what can you जी जी contribute. I जी mean, one of the reasons I came back to Pakistan was also I felt I was very privileged, because जी मुझे जो exposure मिला यूके में, हाँ अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, वो एक जज्बा था उन दिनों में, वेर आई एंड अल्लाह का शुक्र है, आई फील वेरी ब्लेस्ड जी दैट मैं पाकिस्तान वापस आया. बिलीव मी, मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, जो जो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, माई इमीडिएट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, a lot of whom we did our CA together, at least in the 5 or 6 Pakistani friends who did CA around the same time in हम्म 1982, 83, 84 in the UK, they all are abroad. I'm the only one back in Pakistan. माशाल्लाह माशाल्लाह But Allah ka shukr hai, I can tell you that I am certainly not worse off, अल्हम्दुलिल्लाह probably better off than any of them. अच्छा मैं अपना भी एक थोड़ा सा आपके बारे में तासुर दे दूं आप Zarur. मेरा अपना जो मैंने जब आपको ज़ाहिर है मैंने उस वक़्त ज़्यादा देखा जब मैं 2010 के बाद मीज़ान बैंक में आया, उससे पहले इक्का-दुक्का मुलाकात हुई थी। तो मेरा आपके बारे में तासुर हमेशा से ये था कि यू आर द वन हू वांट्स टू कंट्रीब्यूट, हू वांट्स टू डिलिवर। बहुत माज़रत के साथ 2010 में जब मैंने जॉइन किया तो इत्तेफ़ाक से जो मुझे कमरा दिया गया था वो आरिफ साहब के और इरफान साहब के कमरे के बिल्कुल सामने था। और शायद आपको याद हो या ना याद हो लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि आपको ऑफ़र आई थी अच्छी और आपके तकरीबन आप पैकिंग मरहले थे, देन यू चेंज योर माइंड और ग़ालिबन इसके पीछे सिर्फ़ यही बात थी कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते थे मीज़ान बैंक के लिए, वरना जो आदमी एमसीबी में एससीवीपी रहा हो, यंगेस्ट, तो उसके पास नंबर 1 बनने के मौके बहुत से थे और आपको जैसे करियर की एडवाइस दी गई थी कि ये एक ग्लास सीलिंग आती है, ऊपर जा नहीं सकते हो, जो कही थी। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब बहुत ही बेहतरीन आदमी, नाइस आदमी हैं, लेकिन उनका घना दरख्त ऐसा था, हमें भी अंदाज़ा था और आपको भी अंदाज़ा था कि उसके नीचे कोई दूसरा घना दरख्त आ नहीं सकता है। बट यू कंटिन्यूड विद I'll tell मीज़ान you बैंक why. फॉर अ कॉज़। I tell you. Exactly. And I felt that Mizan, Allah ka shukar hai, at that time, around 2010, 2011, uh, Mizan, Allah ka shukar hai, had established itself in the market. बिल्कुल, इसमें We कोई शक were, नहीं है। we were, we were becoming a very strong brand, जी, and we had worked hard to build that brand. But I felt that there was a lot to do going forward, and I again felt जो आपने contribution का एक लफ्ज़ use किया, हाँ, I कि felt that there एक was a सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया, कोई जाने ना जाने। exactly, ये एक इनर सैटिस्फैक्शन and होती है। this gave me a lot of energy. It gave me a lot of satisfaction जी, जी। that this is a platform that I think we can build into something which is great. Or Allah ka shukar hai, when I look back today, I अल्हम्दुलिल्लाह। can say with a lot of confidence that we have been able to achieve that. मैं आपको बताऊँ, असल मज़ा वो होता है जब रिटायरमेंट के बाद आदमी रिलैक्स होके बैठा हो और फिर पिछले दिनों याद करे और ये सोचे कि ये मैंने चेंज लाया, ये मैंने कंट्रीब्यूट किया। उसके लिए कोई किसी से सर्टिफ़िकेशन नहीं उसकी चाहिए, कोई प्राइस नहीं है, उसकी कोई प्राइस नहीं उसकी है। कोई प्राइस जी, नहीं जी। है. ये वो और खुशी है जो आदमी पैसों से खरीद ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सो आई फील, मैंने एक लफ्ज यूज किया ना पहले, जो आई फील ब्लेस्ड. जी, आई फील ब्लेस्ड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. जी, ओके, एंड ये मेरी कोई, ऑब्वियसली मैंने जो कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसी तरह जो मीज़ान की टीम थी, जी। वो अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग मिल गए, और जिस जज्बे जज्बे से उन्होंने काम किया, तो द पैशन विद व्हिच वी एवरीवन वर्कड, इट वाज बेलॉस, इट वाज विदाउट. इनफैक्ट आई रिमेंबर, आपको याद होगा हमारे एक साथी थे मीज़ान में, नजमुल हसन साहब. मैं समझता हूँ कोर टीम में 3 लोग थे। यस. इरफान साहब थे, हाँ. आप थे और नजमुल हसन साहब थे। और नजमुल हसन साहब ने जितना कंट्रीब्यूट किया मैं पूरे पाकिस्तान घुमा हूँ और उनके फुटप्रिंट भी मालूम है कि जहाँ-जहाँ जाके मंडियों एक्चुअली में। देखिए, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है
जो पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का आगाज जो है ना, हाँ वो शुरू हुआ 1985 में। जी आपके जी इल्म में होगा, जी बिल्कुल, वो ये दौर जिया साहब का जो था आया था जनरल जियाउल हक, जी 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 और उनका जो पहला सर्कुलर आया स्टेट बैंक से, मुझे अच्छी जी तरह याद है। इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सर्कुलर वाज, आप कभी निकाल के देखें, इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, जी इस्लामाइजेशन, जी 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 राइट। जी जी अनफॉर्चुनेटली उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना, वो एक बड़े फ्लॉड अंदाज से उसकी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और उसकी वजह से पीपल बिकेम वेरी वेरी डिसइल्यूजन विद इस्लामिक बैंकिंग। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि वो सर्कुलर जैसा उसमें ये था कि अब आइंदा जो है ना बैंकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, जी ठीक है। हाँ तो मुझे याद है उस जमाने में मैं एलएलएम में मेरा थीसिस था इस्लामिक बैंकिंग का, तो हाँ मैंने कहा फिर से किया था। तो मुझे वो कार्टून आज तक याद है कि जिसे कार्टून में था कि वो एक बैंक के अंदर कुछ कस्टमर परेशान खड़े हुए हैं, कुछ लोग टीवी को लगा के कमेंट्री देख रहे हैं, हाँ। कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, और मैनेजर जो है वो परेशानी के आलम में कस्टमर को इशारा कर रहा है कि वी डोंट टेक इंटरेस्ट इन बैंकिंग। हम्म। गुड वन, गुड वन। नहीं नहीं, इट वाज अ टाइम व्हेन इस्लामिक बैंकिंग एक्चुअली I would say made a bad name for itself. इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सन 2002 में, आई थिंक इसका जिक्र नहीं हुआ अब तक, तो सन 2002 में अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक had the opportunity to acquire SocGen. मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा रुक जाए, हम अगले इसमें आते हैं, हाँ। ताकि वही इंपॉर्टेंट है, वो जो टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। एक ये ऐसा ना, अगर हम थोड़ा सा भी गैप ले रहे हैं, अब आपका नया बैंकिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसको हम अगले हफ्ते में अगली किस्म में लेके आते हैं और इस किस्म को यहाँ पे रोकते हैं, Sure. ताकि